Good evening, Jai Hind, Vanakkam, and welcome to गन्ना शॉट. आप सबको गन्ना शॉट की तरफ से प्रणाम और सत श्री अकाल. आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है और मैं आज ना शुरू करूंगा बोले सोनिहाल सत श्री अकाल वाहजुरी खालसा वाहिगुरु का फतेह. राइट, क्योंकि आज फतेह का दिन है हमारा. फतेह का दिन इसीलिए है कि देयर इज अ बिट ऑफ अ shake in the global affairs, and overall it benefits India, right? And towards as we go along in this presentation, I'll put it across to you. Okay. पहले मैं ये कूज के साथ शुरू करता हूँ कि कू में क्या हुआ और उसका परिणाम क्या है, चाइना में क्या परिणाम है, हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा. 360 डिग्रीज. सबसे पहले ये येवगेनी प्रिगोजिन, ये कौन है? ये पुतिन का बावर्ची है. ये दोनों पिछले 20 साल से दोस्त हैं. ये बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है. ये जेल काट चुका है 10 साल. किसके लिए? फॉर रॉबरी एंड थेफ्ट. रॉबरी एंड थेफ्ट के लिए ये जेल काट चुका है. ये एक रेस्टोरेंट चला रहा था जहां पुतिन गया और खुश हो गया और इसको अपना प्राइवेट शेफ बना लिया और ये धीरे 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 ये मर्सनरी ग्रुप तैयार कर लिया. और जब पुतिन और रशिया का जितना भी दोज tasks in Central Africa, outside Russia, which had to be done through mercenaries, where denial by Russia was involved, he used to employ this fellow and his group, Wagner group. पैसा बनाना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू किया और ये अमीर बन गया. एक्चुअली दे आर एक्चुअली क्लोज फ्रेंड्स, दोस्त हैं ये. ठीक, ओके. अब जब पिछले साल यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, कुछ ही दिनों में पता चला कि द रशियन आर्मी वाज नॉट अप टू इट. तो धीरे धीरे पुतिन ने वैगनर को ले आया अंदर, उसने दाखिल कर दिया. वैगनर हैड अ फाइटिंग फोर्स. He made whatever he had to do, and it came out very clearly that the Russian infantry was not good enough. So he used Wagner's force. This started coming about 4-5 months back, and then they started using Wagner's thing and all that. If you remember, Self and General Dushyant Singh had done a thing on outsourcing war. I followed it up with Agniveers being mercenaries. All this was for the purpose. We knew where this was going, but I didn't expect this to happen. तो क्या हुआ कि slowly Wagner's force and Russian armed forces became two competing entities, and they started vying for power in Russia, in the government. You must remember that the defense minister of Russia he's given a general's rank, but he is not a general. He is some civil defense kind of a person. And so is the next guy. And the next guy, Surokin, and this fellow, Wagner, are friends. So it's Gitch-Pitch. So there are competing interests, right? So in this competing interest, that this chap was against the Gerasimov, who was some other general of, actual general in the Russian forces. So, and Wagner was doing what Russian army couldn't do with his whatever his elements were. So there is a lot of issues involved. There are a lot of politics involved. Now this chap became a political entity. 6 months back, no one knew about Wagner. Suddenly, everyone talks of Wagner. He became a political entity. And then he felt that it's possible that the Russian generals were giving all wrong inputs to Putin. So there was a disconnect.
politico-military disconnect between Putin and his generals. And this part I have पहले भी मैंने बताया कि politico-military fusion Putin और उसके जनरल्स के बीच में नहीं है. ठीक है, तो ये जो पूरा ये है, ये उबल के अभी आया है बाहर, राइट. एंड ही मस्ट हैव हिज ओन एम्बिशंस. एक जो कैदी जो 10 साल जेल काट चुका है, वो एक रेस्टोरेंट चलाता है, वेटर बन जाता है, फिर शेफ बन जाता है, और धीरे धीरे एक मर्सनरी आर्मी खड़ा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और वो he must be very capable and ambitious, so he has his own ambitions. And he's competing with the organized forces of Russia, so he's taken this step. Whatever, that's the background. This background is important because what I'm going to talk again is connected with this. Okay, sir, what happened? Obviously, if you go into this map, agar aap dekhenge, so he took over Rostov-on-Don. And Rostov-on-Don is where the headquarters of the Southern Command is. He took over that. And from there, he started going towards Voronezh. And Rostov-on-Don to Voronezh is about 300 kilometers. That 350 kilometers jitna bhi hai. He moved his forces till Voronezh and unopposed. That's the beauty. So what does it give rise to? Either that the Russian forces were compromised, or they have switched his loyalties to him, or they were so demoralized they couldn't do anything. Or there was nothing, which means Russia doesn't have reserves. So when he came to Voronezh, then Moscow started reacting, and Putin came and gave a speech and all that. And somewhere this whole story, they were saying कि कुछ होने वाला है. तो बेलारूस का प्रेसिडेंट को लिया है, लुकाशेंको, जो पुतिन का चमचा है. और ये there's a political deal which has happened. And the political deal में ये from Voronezh he's turned east, turned west, and gone to Belarus. He's given a safe passage to Belarus. So this puts a lot of issues. So actually it put Putin on the hawk. कि Putin को अभी एक politically ये problem हो गया ये. अभी खास बात ये है, Putin अभी मेजर पॉइंट ये है देखने वाली बात कि Putin अभी अपना सत्ता बचाएगा, मॉस्को डिफेंस करेगा, कोई क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम तो है ही, या he will look at Ukraine war. So these are the major issues. So Putin is weak. अभी Putin का खुद खतरे में है. हो सकता है कि वैगनर का फोर्स वैगनर बेलारूस चला गया लुकाशेंको के पास ऑन अ डील, बट कुछ तो इंस्टेबिलिटी आ गया ना. Putin's political thing is weak. ये खबर चाइना से भी आ रहा है और यूरोप से भी आ रहा है. हालांकि अभी तक यूएसए चुप है, पर चाइना से ये तो खबर आ गया, अभी उसका बात भी करेंगे. तो इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, एक एक फैक्टर्स लेके हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले बात यह है कि Putin's power or survival. Putin's power was dependent on the Ukraine war. वो यूक्रेन वॉर लड़खड़ा रहा था एक साल से. जितना देर चलता गया ये वॉर, his power started diminishing. People started questioning all over. And he used Prigozhin. अब ये वैगनर वाला फोर्स जो है, he has become a political player. In fact, for the past 3-4 months, he's been giving political statements. In the past 1 week, he's been giving more political statements. He has a fight. Now, he's made this mutiny move. There's a clear mutiny. There's no doubt about it. Let's not have any doubt about it. So, he has, and this mutiny is something which Putin has come on open television and said so. So his survival at stake. Yesterday there was news that he might have gone to St. Petersburg. So all this has weakened Putin. Now Putin is on the horns of a dilemma. He has to take care of his own self and also has to handle Ukraine.
If he goes down in Ukraine, Russia loses. If he goes down, Russia loses. And till such time this Prigozhin is not neutralized completely in some form, he's a political threat. Now he's a political threat whether he's in Russia or in Belarus. The latest news which is coming out is in Belarus. Okay, then Prigozhin could not have done, ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता था. ये सब हुआ है with some insider. लोग बोल रहे हैं कि वो सुरोकिन है, जनरल सुरोकिन, वो इसका दोस्त है. अब कितना सच है नहीं है पता नहीं है. तो अभी क्या है कि हो सकता है मॉस्को के अंदर ही दो गुट हैं और हो सकता है ये सब इंजीनियर्ड है थ्रू यूएसए. उसके जो जोक्स ट्विटर में भी आ गए. तो राइट, सो देयर इज अ इनसाइडर दिस थिंग. फिर अभी अगर द वैगनर फोर्स जो है, जितना ये मर्सनरीज हैं प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के, ये इसके पूरे जो फौज है ना, इट वाज अ मेजर फाइटिंग एलिमेंट ऑफ रशिया. अब वो छोड़ के चले गए, अब वो बिकर जाएंगे, उनका कमांड कंट्रोल होगा नहीं, उनका लीडर तो बैठा है बेलारूस में, उसको उनको पैसा कौन देगा, कहां से आएगा? वैगनर को खुद पैसा कहां से आएगा, या नहीं प्रिगोजिन को, येवगेनी प्रिगोजिन को? तो ये टूट जाएगा. अगर ये टूट गया तो रशियन आर्म फोर्सेस में इट विल बिकम ढीला. इनका फाइटिंग स्ट्रेंथ क्या निकलेगा? दूसरी बात, ये प्रोफेशनलिज्म ऑफ रशियन आर्मी, एक सवाल आ गया. पहले ही सवाल था कि दे कुड नॉट गेट ओवर यूक्रेन विद ऑल द बेस्ट इक्विपमेंट दे हैड. अब और सवाल होगा क्योंकि वैगनर फोर्स इसके साथ नहीं है. ये बकमुट का जितना लड़ाई 3 महीने चला, ये वैगनर फोर्स की वजह से ही चला, क्योंकि यही लड़ते थे, रशियन आर्म फोर्सेस नहीं लड़ते थे. अब ये क्या ट्रेंचेस में काम करेंगे रशियन आर्म फोर्सेस, ये पता नहीं. एक चीज बड़ा उभर के आया है. नाउ दिस फेलो वेंट इन दिस मैप, इफ यू सी, yeah, from Rostov on Don to Voronezh, 350 kilometers, he went completely unopposed. Okay, that means there's no fighting strength, reserves ही नहीं है रशिया में इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि सारे कमिटेड हैं. So that means the Russian armed forces are at their edge, at their outer edge. अब Ukraine will restart the whole story. They'll press home क्योंकि they are seeing thing. Morale of course will be weak. Okay. Now the point is कि ये लंबे लंबे जो लड़ाई होते हैं, इनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. इसका मतलब वो उसके आउटकम्स क्या है हमें पता ही नहीं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम है अभी इसका. और ये पूरा कहानी जो है ये अनस्टेबल हो चुका है यूक्रेन वॉर. अगर मान लो सिनेरियो एक, यूक्रेन जीत गया, अभी रशियन फोर्सेस पिट गए, कल के दिन उनका मोरल डाउन है, यूक्रेन जीत गया, क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? क्योंकि अगर रशिया हार गया तो इट्स एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर रशिया. अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो रशिया का पावर डाउन हो जाएगा. मान लो बैटल में कुछ ना हो तो द पावर इन रशिया, द पॉलिटिकल पावर इन रशिया विल शेक होगा. क्योंकि अगर आप गोर्बाचोव के टाइम में जो कू हुआ था, तब भी रशिया 91 की बात है, 91-92 की बात है, तब भी प्रॉब्लम था. उसके बाद येल्सिन और उसका पार्लियामेंट का फेस ऑफ हुआ था उन दिनों में, तब भी प्रॉब्लम आया था. और उन दिनों में रशिया वाज एब्सोल्युटली अनस्टेबल. ये नहीं पता होता था कि कल का दिन कौन होगा. इसके बाद ये नहीं पता है कि अभी पुतिन का कितना बोलबाला होगा. तो रशिया इज गोइंग इनटू अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी, इसमें दो राय नहीं है. इट्स अ वीकेंड पावर नाउ. ओके, तो एक तो ये है, इसका परिणाम कहां होगा? व्हाट विल यूएसए डू? यूएसए विल ऑब्वियसली प्रेस होम एवरीथिंग.
right? So there's a issue there. Okay, uh, Maximilian, thanks a lot. Right. Um, this is as far as this is concerned. Next point. Now there's a huge spanner in China's dreams. चाइना के ख्वाब में ना वो कबाब का हड्डी बन गया ये रशिया में जो हो रहा है क्या है। सबसे पहले रशिया में ये है कि रशिया ये ये प्यूटिन का जो चाहता है, लॉयलिस्ट है, उसका खास आदमी है, उसके अगेंस्ट पब्लिकली आ गया है। जी जिनपिंग भी यही सोच रहा होगा। उसने सबको अपना कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो में, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चुन चुन के रखा। अब दिमाग का क्या है भरोसा, उसी में से एक सांप निकला आया। तो जैसे येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के लिए निकला था, एक बंदा निकला है तो उसमें, और वो अगर बैनर खड़ा कर दे रिवोल्ट का अगेंस्ट जी जिनपिंग का क्या हाल होगा। यही प्रॉब्लम होता है ऑटोक्रेट्स का। जब कुछ हो जाता है इनको पता नहीं चलता करना क्या है। अगर वो, उसका मतलब क्या है कि आगे जाके वही मैंने लिखा, चाइनीज प्रोग्रेशन है क्या अंदर, होगा कुछ ना कुछ जिसके ख्वाब होंगे कि ये जी को बुड्ढा को हटा दो, हम टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो उस वक्त चाइना का क्या हाल होगा। तो अभी क्या है कि ऑलरेडी अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि जी जिनपिंग सिक्योरिटी 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 बोले जा रहा है, अब और बोलेगा और टाइट करेगा। अगर पर्ज हो रहे हैं तो और भी होंगे। अगर जरा सा भी शक हुआ किसी व्यक्ति के ऊपर, जी जिनपिंग को उसको उड़ा देगा। अगर ये बात हुआ तो चाइना का जितने सीनियर लोग ये वो डरेंगे करने के लिए, कुछ फूंक फूंक के करेंगे। इसका मतलब वो इंटरनलाइज करेंगे। अगर इंटरनलाइज करेंगे तो चाइना डूबेगा। मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं, internally looking China is the best China for India, and a weakened Xi Jinping is the best Xi Jinping, and Xi Jinping in any manner is the best ally for India. So that is coming true. A person who is not confident only will keep looking inside की security के बारे में, क्योंकि he's an autocrat. Okay, so he will stress more on internal security. अब क्या है, मान लो कल के दिन रशिया में कुछ रशिया में जो प्रॉब्लम है हो रहा है वो सॉर्ट आउट होने दो। वो बरीकी में उसका क्या कहाँ गया ये वह वो आप सॉर्ट आउट करते रहेंगे। पर ये बात है कि अगर रशिया लुढ़क गया तो ये इनका जो फ्रेंडशिप है, नो लिमिट्स फ्रेंडशिप, उसमें क्या असर होगा। चाइना विल हैव टू नाउ प्ले अ लोन हैंड अगेंस्ट यूएसए। ऑलरेडी इसके संकेत वहां से आ रहे हैं, चाइना से। अब ये जो चाइना का जो डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट हुआ है कि मिडिल ईस्ट रशिया के साथ, चाइना, ईरान में, वेस्ट एशिया में, सऊदी में, ये इन सब के लिए इनको रशिया की जरूरत है, या कजाकिस्तान में, या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। बिना रशिया के चाइना की बस की बात नहीं है। तो वो भी खतरे में हो गया। अब पाकिस्तान का क्या होगा कालिए। पाकिस्तान तो अभी सोचना होगा कि करना क्या है हमने। पाकिस्तान में कोने में था उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ, अब वो कहीं पाताल में घुस सकते हैं। दे विल बिकम मोर इररिलेवेंट। वी हैव टू रियलाइज ऑल दीज इम्प्लीकेशंस। एक छोटा सा एक्शन हुआ है और ये एक्शन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इफ Wagner, that fellow is in Belarus, will create problems. So instability in Russia will continue. Okay. Right. This is, ये क्या है कि ये चाइनीज मीडिया का है। One incident alone will not have a direct impact on the Russia-China relationship or on China itself. But the overall international situation, including the future direction of the Russia-China war,
The uncertainty of Russia's future development, the geopolitical challenge, the significant shifts in China's surrounding environment will have a historical impact on China. इनका पतलून अभी से ढीला हो रहा है. A failure on the front lines of a major military action, such as one to unify Taiwan with the mainland, could help unofficial militant groups to spring up, a risk Chinese leaders have to prepare for. Long war ka unintended consequences. This is the story. If tomorrow Xi Jinping goes into Taiwan and it gets stuck there and और वहां रिबेलन वगैरह हो गया, ये तो गया ना बिल्कुल काम से. ये देखने वाली बात है. ये कहानी यहाँ हो रहा है पर एक्चुअल एक्शन वहां होने वाला है. अब Xi Jinping will have lot of psychological thinking. करना क्या है मैंने आगे. Now, the Russia has always been an example for China to prepare for national security risks. इनका modeling, इनका war doctrine, इनका सब कुछ they have modeled as per Russia. अगर इनका doctrine देखिएगा और रशिया का doctrine देखिएगा तो बराबर है. Okay, देखिए मैं I'll just deviate from this. The US had this airland battle. A copy of this airland battle was a Recce strike complex of USSR and then later on Russia. That Recce strike complex integration, that fundamentals have been converted into system of system operations by PLA. Same method of fighting वगैरह वगैरह वगैरह. अब वो सब खतरे में है क्योंकि वो अभी फेल हो गया है. ठीक है ना. तो अभी ये प्रॉब्लम में है. ओके, अभी और आगे बढ़ते हैं. पिछले एक हफ्ते से ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एनालाइज करते आ रहा हूं. मैंने 5 वीडियो निकाला है आज तक. कृपया अगर आप चाहते हो आगे कि यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, प्लीज सी दिस वीडियोस. आई एम टेलिंग यू, these are the best series I have done, and they have absolutely, for India it's an opening of a tunnel. Up to you to say it or not, but this is my way of looking at it. Now we know this equation that कि यूएसए और इंडिया के बीच में आकर्षण है और अभी वो बढ़ गया है. चाइना और रशिया के बीच में आकर्षण है, अब वो पतला हो गया है, पतला हो जाएगा. इक्वेशंस देखना पड़ेगा कि इस क्वाड्रिलेटरल में चाइना और यूएसए का क्या होगा, अभी इंडिया चाइना का क्या होगा, इंडिया रशिया का क्या होगा. और ये क्योंकि अभी आते हैं इसके ऊपर. अभी देखिए क्या क्या एक्शन हुआ है पिछले 1-2 हफ्ते में. 2 हफ्ते की बात है. अब देखिए अलॉन्ग अभी मेन एक्शन हुआ पिछले हफ्ता मोदी और बाइडेन का मीट और इंडो यूएस पार्टनरशिप जो बड़ा स्ट्रांग हो गया. अभी इट इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ अ अलायंस. कई जगह में तो अलायंस से ज्यादा भी है क्योंकि यूएसए एंड उनका जो अलायंस पार्टनर्स हैं, अलायंस पार्टनर्स कौन, यूरोप में जितने हैं नाटो के, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वो भी उन्होंने इतना एक्सरसाइजेस नहीं किया किसी देश के साथ जितना यूएसए और इंडिया का हुआ है. चाहे मलबार एक्सरसाइजेस लीजिए, रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस लीजिए एयरफोर्स का, या आर्मी के साथ जो एक्सरसाइजेस है, बहुत जगह में वी आर मोर देन अलायंस एक्चुअली एक्ट ऑन ग्राउंड. तो ये हुआ है और ये स्ट्रांग हो गया है. सिर्फ पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले जी जिनपिंग ने एक स्पेशल एनवॉय को भेजा रशिया में कि ये सुलह करने के लिए. इट फेल्ड. अब वहां म्यूटिनी हो गया है. तो क्या है, ये अलायंस ढीला हो गया है. इसी पावर बैलेंस में ब्लिंकन और जी जिनपिंग का मीट हुआ है. उसमें जी जिनपिंग ने ब्लिंकन को ऐसे मतलब
ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया। और वैंगी, जब ये इंडो यूएस मीट हो रहा था, वैंगी ने ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल निकाला, और ये सब वो मेरा 5 वीडियोस में है, आप देखिए। इंडिया चाइना इसमें है, ये क्या क्या है, उनका क्या राय है, सब कुछ है। ओके, अभी इसके बाद क्या परिणाम है? ये पूरा पिछले हफ्ते ये हुआ, और ये कूक कहानी में बड़ा क्लियर है कि यूएसए विल बी द डोमिनेंट पावर, चाइना एस्पायरिंग पावर इन डेमोग्राफिक डिक्लाइन, क्योंकि इनका आबादी घट रहा है। पर एक और चीज मैं इसमें जोड़ूंगा, अनश्योर पावर हो जाएगा ये, और अकेला पड़ जाएगा। रशिया विल बी अ वीकेंड पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनका उतना बोलबाला नहीं होगा, क्योंकि अस्थिरता बहुत है, और ये डायगनल, चाइना एंड रशिया विल बी वीक, इंडिया विल बी अ ग्रोइंग पावर। हमें इसमें खतरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो इक्वेशन रशिया के साथ बदली नहीं होगा, पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें। अगर एक चीज है तो रशिया विल नीड इंडिया मोर, बट कैन वी गेट इनफ आउट ऑफ रशिया व्हाट वी नीड, राइट? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, ये 1 मिनट छोड़ दीजिए, लेट्स एग्जामिन दिस। चाइना और इंडिया का जो इक्वेशन है, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे विल बी स्ट्रेन्ड, इसमें तनाव होगा। ये बड़ी क्लियर है, इसके बाद भी, इसके बावजूद, इससे पहले भी, कि इंडिया विल रिमेन अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ बोथ रशिया एंड यूएसए। बट अभी क्या है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया और यूएसए के साथ और मजबूत होगा, और रशिया का ढीला हो जाएगा। और अभी क्या देख रहे हैं कि इंडिया हैज चेंज फ्रॉम अ स्विंग स्टेट टू अ बैलेंसिंग पावर इन ग्लोबल अफेयर्स। अभी एक चीज देखिए, अगर हमें चाइना को निपटना है, चाइना को निपट लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिलिट्रली। पर मेरा ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, यू नो, फेंडिंग ऑफ चाइना इन अ वॉर। दैट्स नॉट माय एम एज इंडिया। माय एम एज इंडिया इज टू बी अ पावर, rise. If I have to rise as a power, I shouldn't fight with China, I should corner China. Now, Russia is a weak partner. I cannot rely on him. If I cannot rely on him, I have to look at USA more. I have to look at USA more openly. I have to be more transactional and deepen my relationship with USA. I don't have a choice. Let's be very clear. Akele with China, we can hold off China, but we cannot become a power. उल्टा देखिए, same problem for USA. USA will not be able to contain China alone. It needs India. So there's a mutual interdependence. And this mutual interdependence is what will take us through. Because Russia will be an unsure partner for some time. Why I'm saying so, if whatever happened in 91, 92 repeats itself, it took about 5-6 years for Russia to recover from there. I still remember we had a lot of problems getting spares from Russia at that time. इनफैक्ट अराउंड दैट टाइम हमने तय किया था आर्टिलरी के अंदर कि वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रशिया एनीमोर. दैट इज व्हाई टुडे इंडियन आर्टिलरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रशिया कंप्लीटली, एक्सेप्ट वन स्मर्च के अलावा वी आर जस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन रशिया. Of course, others have to go through, but we have gone ahead of the curve. This is one thing which I can say with great pride. Indian artillery is Indian artillery. It is not Russian artillery. It's not US artillery. It's not British artillery. It is Atmanirbhar artillery. और मैं I'll do this show. I'm only not getting time to do this show. Okay, but that's something else. So you this balance of power will change. This interdependencies will change now, and we have to gear up accordingly. I'm sure someone is thinking about all this. If not, please give him this video. Let's talk of this 1 मिनट के लिए.
तो ओबामा ने बताया कि यूएस इंडिया टाइज विल बी अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। वही बात अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडेन ने दोहराया। अभी दो राय नहीं है, यूएसए वांट्स टू कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड, बट जैसे मैंने पहले बताया, इट नीड्स इंडिया टू डू सो। चाइना, यूएसए कैन नॉट कंटेन चाइना विदाउट इंडिया। जैसे मैंने बताया, इंडिया कैन हैंडल चाइना इन इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट। लड़ाई वी कैन निपटो देम, और चाइना का इतना भी शक्ति नहीं है कि वो हमसे लड़ के जीत सकता है, छोटा मोटा कर सकता है। और यही हमारा विश्लेषण निकला पिछले 5 दिन का जो वो ग्लोबल मैट्रिक्स का सीरीज में। ठीक। However, for India to rise as a global power, it needs USA as a strategic partner. अभी ये रशिया में जो भी हुआ, इसके बाद और भी चाहिए हमें। However, हम उनके एलाई नहीं बन सकते, ना बनना चाहिए। एक चीज याद रखना, इंडिया इज द ओनली कंट्री which can replace China in scale and size. अभी जितना रिलोकेशन चाइना से हो रहा है ना, वो क्या है कि वो कुछ वियतनाम में हो गया, कुछ इंडोनेशिया में हो गया, कुछ यहाँ वहां हो गया। वो छोटे छोटे देश हैं, उनके कैपेबिलिटीज कम है, बस खत्म। वो आ नहीं जाएंगे आगे, वो इंडिया ही आएंगे। और इंडिया में आने के लिए इसीलिए तो हमारा प्रधानमंत्री के कितने सीईओज मिले वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा अगर रुख बदल गया तो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा, जिसमें दो राय नहीं है। तो हमारा राइज निश्चित है। एक और चीज अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-15 दिन में टेक्नोलॉजी हमारे पास उतना नहीं है। आप बोलते रहो, चिल्लाते रहो, चीखते रहो, आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता, वो हो नहीं रहा। सो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट ट्रैक। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ऊपर बढ़ना है तो। ओके, राइट। सो वी हैव नो चॉइस। अगर हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हाँ एक चारा है, आप टोपी लगाओ और बैठ जाओ, और जो भी रास्ते में जा रहा है मांग लो, दे दे भाई दे दे। अगर अपने पावर बनना है, कुछ कदम उठाइए, और ये मौका है हमारे लिए। ओके, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का रिपोर्ट है। म्यूचुअल चाइना चैलेंजेस डिस्कस बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हैं? दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर कोअर्सिव एक्शंस एंड राइजिंग टेंशंस इन इंडो पैसिफिक एंड स्ट्रांगली अपोज चेंजेस इन स्टेटस को बाय फोर्स। ये इनके जॉइंट डिक्लेरेशन में है, इंडिया यूएस जॉइंट डिक्लेरेशन में, राइट। ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Modi state visit capped by meeting with tech company leaders as Biden's administration aims to diversify supply chains away from China. There's no doubt about it. Okay. उनका भी जरूरत है, हमारा भी जरूरत है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। ओके, इनका ये भी राय है, इंडिया यूएस इन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ओवर चाइना पॉलिसी। वो हमें दे आर शूटिंग, दे आर फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, चाइना, राइट। अभी चाइना में सोच ये है, इट्स अ प्राइस वेल वर्थ पेइंग फॉर बीजिंग टू विन बैक दिल्लीज न्यूट्रलिटी बाय रिजॉल्विंग और एटलीस्ट स्टेबलाइजिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। कल तक ये बोल रहे थे कि बॉर्डर को अलग रखो, आगे देखो, ये वो। अब ये इनका ट्रैक भी बदल गया, बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर 16 कर लो, इनको न्यूट्रल रखो, क्योंकि अगर इंडिया न्यूट्रल नहीं है तो हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते, सॉरी यूएसए के साथ नहीं लड़ सकते। और अभी रशिया में जो भी हुआ है उसके बाद तो ये बिल्कुल बोलेगा, ये आएगा हमारे पास। क्या हम तैयार हैं? अब मैं तो आगे सोच रहा हूं, क्या हम तैयार हैं? सोचने वाली बात है। एक और इन्होंने निकाला है बात, और मैं इसके बारे में दो
मिनट और व्यतीत करूंगा। फॉर इंडिया टू बी एन इफेक्टिव पार्टनर टू द यूएस इट नीड्स स्टेबिलिटी एट होम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मैसिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स इन कश्मीर, वो ठीक है। मोर रिसेंटली इन द स्टेट ऑफ मणिपुर स्ट्रेन इंडियाज इनएडिक्वेटली फंडेड मिलिट्री। देखिए इंस्टेबिलिटी है मणिपुर के अंदर, इसमें चाइना हाथ डालेगा, इसमें दो राय नहीं होना चाहिए हमें, और दो सोच नहीं होना चाहिए। पर हमारे सोशल मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं, असम राइफल बेवकूफ है, ये कोई ये नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन है इसलिए ठीक नहीं है, हिंदू है मैती इनके अगेंस्ट उल्टा हो रहा है, राइट। ये पॉलिटिक्स चल रहा है मणिपुर में। आप न्योता दे रहे हो चाइना को, भाई आ जाओ, हमें मतलब उंगली दो और हमें पकड़ के नीचे करो, डुबो दो। ये है हमारा हालत अंदरूनी। जब तक अंदरूनी शक्ति नहीं होगा हम ऊपर नहीं जाएंगे। आप देख रहे हो चाइना में क्या होने वाला है और रशिया में क्या होने वाला है। यहां तो हम स्वयंवरम कर रहे हैं। देखिए ये अगर हम, ये स्ट्रेटेजिक बेवकूफी है ये जो भी हो रहा है मणिपुर के अंदर, क्योंकि ये इसमें कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और वोट बैंक का मुद्दा है ये। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमने काफी 4 टेन्योर किया है उस इलाके में, हमें पता है कि वहां क्या क्या होता है, हर आदमी क्या सोचता है हमें पता है। इसीलिए मैंने एक वीडियो जारी किया था, कल कल लाइव सेशन किया था हमारे अंदर। आप देखिए आज के दिन मैं ये कर रहा हूं ना लाइव, जो रशिया में हो रहा है उसके लिए आप लोग इतने सवाल लेके आए हो। हमारा मणिपुर जल रहा है, इट्स बर्निंग। कल 20 आदमी थे और 2 सवाल भी नहीं थे आपकी तरफ से। हम सब इसमें शामिल है भाई। जब तक अपना शरीर ठीक नहीं होगा आप दूसरे के साथ क्या लड़ोगे? ये तो सोचने वाली बात है। ओके, अ मेजर थिंग अभी जो हो रहा है ये देखिए, ये चाइना का न्यूज है। फिर भी इंडियन कैरियर्स रिकॉर्ड प्लेन डील्स कुड पोज सीरियस थ्रेट टू मिडिल ईस्ट एविएशन हब्स, यानी कि पूरा एविएशन हब्स कैन शिफ्ट टू इंडिया, दे कैन ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू दिस साइड। ये जितना एशियन नेशन, अगर एक हब यहाँ हो गया तो एशियन नेशंस जो अभी चाइना के ऊपर निर्भर हैं यहाँ आ जाएंगे। उसमें भी घाटा है उनको, उनको पता है। और ये कब होगा? जब हमारा इंडिगो और एयर इंडिया ने डील किया, इंडिगो ने दिया एयरबस के साथ, एयर इंडिया ने बोइंग के साथ, तो फ्रांस और यूएसए का यहां हमने बांध लिया। तो हमारा वी वी आर ऑन अ पिग्स बैक। अब चाइना का प्रॉब्लम देखिए, चाइना ने हाल ही में C919 नैरो बॉडी पैसेंजर जेट मैन्युफैक्चर किया और वो चलाने शुरू किया। उन्होंने बोला भाई हमने तो एक पैसेंजर प्लेन बना दिया, हम अकेले, अब ये देश है, ये है, वो है। आज का रिपोर्ट ये है कि इनका जो इंजन का पार्ट्स वगैरह वगैरह वो जीई और रोल्स रॉयस से आता है। कल के दिन इनका प्लग कैंसिल लिया यूएसए ने, ये भी बैठ जाएंगे, इनके कोई प्लेन नहीं होगा। और यूएसए ने इनको इंजन बनाने नहीं दिया चाइना को। यूएसए हमारे को लड़ाकू विमान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब फर्क देखिए, उनको खरीदने के लिए वो इंजन दे रहे हैं, बनाने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट इंजन भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगा चाइना के देने से। की टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन अभी भी यूएसए से आएंगे। अगर जी, एयरबस, बोइंग, ये तीनों यहां अगर हो जाएंगे तो दिन दूर नहीं है, मैं जो देख रहा हूं कि चाइना हमारे ऊपर निर्भर होगा। ये है फर्क। और कैसे होगा मैं अभी 2 मिनट में बता देता हूं।
ओके, ओके, ये मैं फिलहाल आई विल नॉट टॉक ऑफ दिस। ओके, अभी जितना भी मैंने बताया है, आप सोच रहे होगे कि यार ये एयरक्राफ्ट का इंजन यहाँ आ गया, एमआरओ इधर हो गया, तो चाइना के ऊपर कैसे असर होगा, हम कैसे सक्सीड हो जाएंगे। दो डील हमने किया है बहुत पहले। M777 का डील किया है, अल्ट्रालाइट होविट्जर का। जब हमने डील शुरू किया था उसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो जीरो था। पर आज उस डील के तहत 5 साल के बाद हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी है जो हम अपना गन बना सकते हैं। आज के दिन लखनऊ में एक फर्म है जो M777 के पूरे पार्ट्स बनाता है, और पूरा विश्व में ये पार्ट्स यहां से जाते हैं इंडिया से। आज के दिन उल्टा हो गया। और कल के दिन अगर यहाँ जी ने प्लांट लगा दिया और एयरबस ने एमआरओ लगा दिया और बोइंग का एमआरओ भी फैसिलिटीज यहाँ आ गए, तो इंडिया विल बिकम एविएशन हब। और यहाँ से पार्ट्स जाएंगे बाहर। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो भी बनेगा क्वालिटी होगा और सस्ता भी होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने यही बात 5 साल पहले जब मैं सर्विस में था ये अमेरिकन वालों को बताया कि भाई आप यहाँ पार्ट बनाओ M777 का, आपको सस्ता भी बनेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आप टेक्नोलॉजी दे दो, टाइटेनियम टेक्नोलॉजी। उन्होंने दे दिया, अभी पार्ट बन रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। वही कल के दिन इसमें भी होगा। ठीक है, आप मत मानिए मेरी बात। मारुति में क्या हुआ है? मारुति मॉडल के ऊपर मैंने M777 का केस चलाया था, राइट। सो ये जो मैं बात बोल रहा हूं, इसमें मेरे को दो राय नहीं है। जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। सिर्फ बेवकूफी नहीं करना मणिपुर में। यही मेरा उम्मीद है और यही मेरा दरखास्त है हमारे गवर्नमेंट से। कल हमारे गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीट किया है। हो सकता है कुछ परिणाम निकले और हमारा प्रधानमंत्री जब आएंगे कुछ समाधान निकलेगा मणिपुर के साथ।